Good morning everyone. In today's video we are going to see the topic circle. Okay. So you have seen various examples of the circle. As one is mentioned here, that is the wheel of the bicycle, right? So you can see here we very commonly see things such as chapati, wheel, rings, CDs, etc. in our daily life. When we trace this, we get a shape of known as a circle. So whatever shape that we are going to see there, that shape is called as the circle, right? Observe the spokes of a wheel. You can see here, you can observe this figure 5.48. Each spoke is joining the center to a point. Okay, these spokes are joining to the center of the point. Okay, first of all I'm going to make here the circle. Okay, just look at here. This is the circle. We have to see the parts of the circle, right? So first of all, these spokes you can see they are joining at here. So this is called as the center of the circle. Okay, this is called as the center of the circle. So this is the first part of the circle, which is because of the center of the circle we can give the name to this circle. Okay, this is very important part. Okay, you can give the name to this circle, so you have to give the name to this center. Suppose it is O or C, you can give any name, any variable. So what is the name of this circle? It is O, right? Center of the circle is O. Then these spokes are joining from this end point to the center, and this line joining these 2 points is called as the radius. Okay, this is called as the radius of the circle. Okay, and always remember how many radius you can draw. What is the definition of the radius? Actually, the line joining from this end point of the circle to the center, that is called as the radius. So see, here also you can join this lines as well as the center. From here also you can join. It means how many radius you can draw in one circle? Infinite radius you can draw in the circles. Okay, it is uncountable that you can draw the radius in the circle. Okay, so here it is given. See, I am going to read here. A radius of a circle is a line segment joining the center of the circle to the point on the circle. This point on the circle with the center of the circle, if you are joining, so that line is called as the radius of the circle, right? Now here you can see figure is given this CP. It means it is the name. Suppose you are giving this point name to the P. So this OP will be the radius of this circle. Okay, so this is the first part. Second part we have seen. First we have seen here center of the circle, then we have seen the radius of the circle. Now we are going to see the diameter of the circle. Now what is the, for this diameter, again I am going to make the another circle here. Okay, so this is the center. Okay, now the line joining, listen carefully, the line joining the point on the circle with the other point on the circle, but that line if it is passing through the center. ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ठीक है, एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, बट ये पास कहाँ से हुई है? सेंटर से पास हुई है. इट इज कंपल्सरी कि वो सेंटर से पास होना ही चाहिए, तभी आप उस लाइन को डायमीटर बोलोगे. ठीक है, इस लाइन का नाम क्या हो गया फिर? डायमीटर. किसको बोलोगे? अगर एक लाइन ऐसी जो कंप्लीटली दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही बट पासिंग कहाँ से हो रही. सपोज यहाँ पर मैंने एक लाइन ज्वाइन किया, देखो ये दोनों एंड पॉइंट को तो ज्वाइन कर दी, बट ये सेंटर में से गई क्या? नहीं. तो दैट्स इट इज नॉट दी लाइन सेगमेंट, सॉरी डायमीटर. अब इसका नाम क्या है वो हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर. सो ये हो गई डायमीटर की डेफिनेशन. बट एक चीज़ आपको इसमें क्या दिख रही है? देखो ये सेंटर है, और अगर आप इसको नहीं देखते हो तो ये आपकी क्या है? रेडियस. अगर आप इस पार्ट को नहीं देखते हो तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो गई? रेडियस. इसका मतलब टू
रेडियस मिलाकर क्या बन रही है, एक डायमीटर बन रही है। ओके, रेडियस के लिए मैंने यहाँ आर वर्ड यूज़ किया, डायमीटर के लिए डी वर्ड यूज़ किया। देखो 2 रेडियस इफ वी विल जॉइन, ओके, ये 2 रेडियस मिलाकर आपको क्या मिली है, डायमीटर। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, आप ध्यान रखो, ये डायमीटर किसको बोलोगे, ऐसी लाइन जो दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है बट पास कहाँ से होती है, सेंटर से। सो दैट लाइन इज कॉल्ड एज डायमीटर। उस लाइन को डायमीटर बोलते हैं। एंड जो डायमीटर होती है ये रेडियस की क्या होती है, डबल होती है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है। ओके, अगर आप इस डायमीटर को ब्रेक करोगे यहाँ से तो आपको क्या मिल रही है, 1 रेडियस मिल रही है, राइट। ओके, सो अगेन नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस डायमीटर पार्ट। A diameter of a circle is a line segment joining 2 points on the circle and also passing through, see this is very important part, passing through the center. Okay, so that is called as the diameter। देखो उसके वजह से ये जो सर्कल है आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। नाउ सी अगेन दिस इज गिवन, डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। देखो 2 रेडियस मिलाकर आपको एक डायमीटर मिलती है। ओके, देखो 2 रेडियस मिलाकर आपको एक डायमीटर मिली। ओके, देन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो अभी बोला मैंने, इस डायमीटर की वजह से सर्कल क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, राइट। देखो यहाँ पर 2 ये पूरा हाफ पार्ट हो गया, ये हाफ पार्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जो ये हाफ सर्कल होता है, सिंपली अगर हम किसी छोटे बच्चे से पूछे कि ये क्या है, सो व्हाट दे विल से दैट इट इज़ द हाफ सर्कल। बट इन द मैथमेटिक्स इस हाफ सर्कल को कौन सा वर्ड है, सेमी सर्कल। ओके, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट, इट इज़ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ द सर्कल, राइट। देन सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस के लिए अगेन if you know we have seen this shape, okay, if you know we have seen this shape, this is the shape of the square and इसमें हमने एक word पढ़ा था that is the perimeter। okay, perimeter का मतलब होता है, I told you in the previous class also if you remember this, so perimeter का मतलब मैंने आपको बताया था बाउंड्री। ओके, बाउंड्री मतलब ये वाला जो पार्ट है, मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ दिस ऑल साइड्स, इट्स कॉल्ड एज दी, ये कंप्लीटली जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो सेम यही पेरीमीटर होता है सर्कल में। ये जो कंप्लीट बाउंड्री जो होता है ये पेरीमीटर, बट सर्कल के लिए एक स्पेशल नेम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज दी सर्कमफरेंस। ओके, सर्कमफरेंस इज नथिंग बट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। बट अगर आप सर्कल का पेरीमीटर निकालोगे तो आप उसको पेरीमीटर नहीं बोलोगे, आप उसको सर्कमफरेंस बोलोगे। समझ में आया, सिर्फ ये बाउंड्री, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अगर यही आप स्क्वायर में बोलोगे, अगर आपको बाउंड्री के बारे में बात करनी तो आप पेरीमीटर वर्ड यूज करोगे, अगर आपको सर्कल के बाउंड्री के बारे में बात करनी तो आप सर्कमफरेंस वर्ड यूज करोगे, राइट। देन circumference is over. Now chord, just see here this statement I am going to read, circumference का statement, the distance moved around a circle once is called its perimeter of the circle। देखो बोला यहाँ perimeter of the circle, so perimeter or the circumference। okay, so जो perimeter of the circle होता है उसी को circumference बोलते हैं। okay, बस just remember this। now we will see chord। A chord or of a circle is line segment joining any 2 points on it। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो लाइन है इसको हम बाद में देखेंगे क्या बोलते हैं। सो देखो ये 2 एंड पॉइंट्स सर्कल के ज्वाइन किया है इसने। ओके, सो ये तो डायमीटर नहीं है, सो व्हाट इज द नेम फॉर दिस, इट इज द chord। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द chord, दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। ठीक है, सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसको chord बोलते हैं, राइट। सो ये डेफिनेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होती है क्या, देखो 2 पॉइंट्स को इस लाइन ने ज्वाइन किया है
सो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। ओके इसका मतलब क्या हुआ है, डायमीटर ये कॉर्ड हो सकती है बट हर कॉर्ड ये डायमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला जो कॉर्ड है ये डायमीटर नहीं है। हाँ ये जो है ये कॉर्ड भी आप इसको बोल सकते हो एंड डायमीटर तो ये है ही, राइट। ये कॉर्ड भी है डायमीटर भी है। तो कॉर्ड और डायमीटर एक कब होगा, जब वो लाइन सेंटर से पास होगा, राइट। सो अगेन इससे और क्या कंक्लूजन निकलता है, जो डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है। ठीक है, देखो ये वाला डिस्टेंस सबसे जो डायमीटर होती है इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके ये आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर नोट में भी दिया है, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ओके ये समटाइम्स यू टीचर कैन आस्क यू इन दी एग्जाम इन द ट्रू फॉल्स और इन दी फिल इन द ब्लैंक। ओके चलो इतना पार्ट हो गया। नाउ वी विल सी दी सेगमेंट्स एंड दी सेक्टर। ओके यहाँ पर एक आर्क भी दिया हुआ है। आर्क क्या होता है, सी वी हैव यूज द कंपास। ओके कंपास से हम ऐसे आर्क बनाते हैं। ठीक है, तो कंपास से जब आप पूरा का पूरा राउंड में करते हो तो आपको क्या मिलता है, सर्कल मिलता है। ओके यही चीज मिलता है ना। तो अगर आप इतना ही पार्ट करते हो तो दैट इज द आर्क, और आप पूरा करते हो तो दैट इज क्लोज फिगर, दैट इज कॉल्ड एज द सर्कल। सो अगर आप इतना करते हो एंड ये पूरा का पूरा केयर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है तो इट इज द माइनर आर्क। ठीक है, यहाँ से यहाँ ए एंड पी इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन, सो इट इज द माइनर आर्क। जो छोटा है उसको माइनर आर्क बोलोगे एंड जो बड़ा वाला है उसको बोलोगे आप मेजर आर्क। Okay just remember this. Then segments and the sector we are going to see here. Look at the figure 5.55a. Okay इसमें the chord AB divides the circle into two parts. Each part is called as the segment of the circle. The smaller segment is called the minor segment and the larger one is called the major segment. देखो अब ये सर्कल है, अगर मैं यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ तो आपको इसमें टू पार्ट्स दिख रहे सर्कल के, एक ये वाला पार्ट हो गया, राइट, एंड एक ये वाला पार्ट हो गया। तो इसमें ये जो पार्ट है आपको कैसा दिख रहा है, लार्ज पार्ट दिख रहा है, ग्रेटर पार्ट दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज द मेजर सेगमेंट। जो ग्रेटर, जो लार्ज, जो मैक्सिमम पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द मेजर सेगमेंट, एंड जो ये स्मॉल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द माइनर सेगमेंट। ओके देखो यहाँ लिखा है ये ग्रेटर पार्ट इज द मेजर सेगमेंट एंड इट इज द माइनर सेगमेंट। ओके नाउ अच्छा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो लाइन सेगमेंट था इट वॉज द डिफरेंट। ठीक है, ये सर्कल के पार्ट्स वी आर गोइंग टू सी हियर। नाउ सेक्टर क्या होता है, अब सेक्टर अगेन सर्कल आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर एंड ये हो गया सेंटर। सपोज टू रेडियस आर joining लाइक दिस। ओके एंड ये जो पार्ट आपको मिल रहा है, लाइक हम जब केक काटते हैं तो इसी शेप में काटते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेक्टर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द सेक्टर, बट ये छोटा पार्ट है एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट। सो ये छोटा पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर एंड दिस इज द मेजर सेक्टर। ओके वेरी सिंपल इट इज। देखो ये माइनर सेक्टर हो गया एंड जो लार्ज पार्ट ग्रेटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द मेजर सेक्टर। Thus the area bounded by the arc and the chord of the circle is called as the segment of the circle. It is given about this part, okay, segment. Now minor sector and major sector we have seen here. The area bounded by the radii and the arc, मतलब टू रेडियाई एंड बिकॉज ऑफ द आर्क जो एरिया आपको मिल रहा है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द सेक्टर। ठीक है, एंड सेगमेंट की वजह, कॉर्ड की वजह से एंड आर्क की वजह से जो एरिया आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द सेगमेंट। ओके जस्ट रिमेंबर दिस। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो ओवर। नाउ रीजन, फिर से आ गया आपका फेवरेट रीजन ऑफ अ सर्कल। सो रीजन में फिर से कौन सी चीजें आती है, इंटीरियर, बाउंड्री एंड एक्सटीरियर। ओके सो इंटीरियर में क्या होगा, द इंटीरियर पार्ट जो भी पॉइंट्स अंदर में होंगे दैट आर द इंटीरियर रीजन। बाउंड्री जो सर्कल के बाउंड्री पर होंगे दैट पॉइंट्स, एंड एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर होंगे दैट आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स। देन उसके बाद फिर से एक चीज दी है सेमी सर्क्यूलर रीजन। सेमी सर्क्यूलर मतलब हमने देखा था सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। ओके सो सेमी सर्क्यूलर मीन्स दैट इज इन दी हाफ ऑफ द रीजन। ठीक है, इस पार्ट में जो भी दिया होगा या जो भी रीजन में दिया होगा दैट इज कॉल्ड एज द सेमी सर्कुलर रीजन, राइट। नाउ यू कैन सी डायरेक्टली दे हैव गिवन अस exercise
5.5. okay, so this exercise we are going to see in the next video. Okay, so before taking this exercise, you have to clear with the all the concepts of the circle as well as the parts of the circle. Okay, just read this, all the theory of the circle. Okay, what are the chord, what is the diameter, what is radius, what is the circumference. Okay, see, you should know the concepts. आपको पता होना चाहिए radius किसको बोलते हैं, that line joining any point from this of the circle as well as with the center of the circle. Okay, this line is called as the radius. diameter किसको बोलते हैं, circumference किसको बोलते हैं, chord किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. Okay, it's not mean that you have to mug up all this thing, you should understand this thing. Okay, I hope आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी. Then you can see now you know. ओके, नाउ यू नो में हम लोगों ने ट्रायंगल तक के जो पार्ट है वो प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोस. So the remaining points now 9, 10, 11, 12, 13 and 14 is all about the quadrilateral. So this also you have to read. Okay, see the 5.4 का कुछ parts हम लोगों ने कट किया था, but for your understanding, for your knowledge, you should know all this thing, right? So just read this, now you know completely. And then in the next video we are going to see exercise 5.5. okay, so read it. Thank you students, have a good day.